तैयारी देखने के लिए हमारा दिल्ली रैली, वोट छोड़ गिद्दी छोड़ रैली का तैयारी देखने के लिए हम इधर आ गया। अच्छा प्रिपरेशन है, मैं पीसीसी के अभिनंदन देना चाहता हूँ। आई थिंक राजस्थान विल प्ले बिग रोल इन दिस रैली. You people know that what is happening in the parliament. This vote chore issue is not Congress party issue alone. This is a national issue. Attack on basic principle of democratic values. Vote for a common man is not a mercy from the government. Targeted deletion, targeted addition, इसी तरफ कैसे चलेंगे? So we are starting a big movement all over India. Yesterday, Rahul Gandhi ji challenged Amit Shah ji. He has done 3 press conferences. All the 3 press conferences, Rahul ji raised a very, very important issue, citing examples. Yesterday, Amit Shah is telling Rahul ji is telling lies. That point of time, Rahul ji challenged Amit Shah. I am ready to have a debate on this issue on my press conference. Are you ready? बहुत तैयार नहीं है. I think entire nation is now worried about this issue. Congress party and India alliance is going to take up this issue in a bigger level. That's why the 14th rally is only a beginning. It will continue. बहुत लंबा लड़ाई है. We will fight it out. आपको लगता है सर इससे कुछ असर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे या मोदी अमित शाह पे कुछ असर होगा? Certainly, it will become a movement. असर हो गया. We are going to have a big movement in India. All over India, we will demonstrate the people. Now people are also realizing that something is happening in these elections. Everybody know that. But simple question. Machine readable voter list. We are asking for machine readable voter list. What is the problem for giving machine readable voter list? Digital India है India में. They are telling digital India है. Why they are denying this machine readable electoral list? Why they are not reinstating CCTV footage? These are the important questions. There is no answer. The entire opposition party is having a mistrust with the Election Commission of India. At least they should come and explain us. They should come and give an answer to us. No answer is giving. It's clearly our democracy is in danger. It is our duty. We think that it is our duty to fight it out and bring back the democracy in India. Actually, that is the real fight is going to be happen. We will not let down this agitation. We will go ahead. Makan ji, आपने बोल दिया सर सवाल ये है ये डेमो क्या है? हम last 2 months we are doing a signature campaign all over India, demanding these 5 issues. These 5 issues, including electronic readable voter list also, machinized readable voter list. These 5 issues we are citing this 5 issue, and we are started a signature campaign. So far, 5 crore signature had been got. We are going to present this 5 crore signature to the President of India. This is only a beginning. Now we will go to district, block, booth level. We will try to educate the people of India. Certainly, there will be a program. माके साहब, आप तो राजस्थान की नब्ज जानते हैं अच्छे से, आप जान रहे हैं, वो नब्ज जानते हैं. इस रैली की सफलता में राजस्थान का कितना योगदान रहेगा? राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पंजाब में उसी दिन चुनाव है
तो राजस्थान में हम स्पेशली आए हैं क्योंकि हमें राजस्थान से बहुत उम्मीद है और हमको लगता है कि राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे और हमें खुशी है कि पूरी तैयारी है। वेणुगोपाल जी ने जैसे बताया, जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कोई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने में उनको क्या हर्जा है। 45 दिन उन्होंने कर दिया, पहले 1 साल सीसीटीवी फुटेज तक संभाल करके रखते थे, रूल बदल दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को हरियाणा के मुतालिक ये कहा कि आप सीसी फुटेज जो है पिटिशनर को दे दीजिए, और उसके बाद में 20 दिसंबर को 10 दिन के अंदर अंदर रूल 93(2) चेंज कर दिया गया और उसको मना कर दिया गया कि आगे से नहीं दिया जा सकता। उसके एकदम फौरन बाद में इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक के सीसीटीवी फुटेज को संभालने की जगह उसको 45 दिन कर दिया। तो ये किस चीज से किसलिए डरे हुए हैं? अगर उसमें कोई चीज छिपाने की नहीं थी, डर इनको नहीं था, तो उसको दिखाने में क्या हर्ज है? वोटर्स लिस्ट सबको मशीन रीडेबल देने में क्या हर्ज है? फिर उसके बाद में मुझे ये बताएं कि कानून आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसके खिलाफ में कोई क्रिमिनल सिविल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो मर्जी चाहे पारदर्शिता खत्म कर दे, पार्शियलिटी करते रहे और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमिश्नर को तो न्यूट्रल होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के लिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। दिसंबर के अंदर सरकार ने उसको बदल दिया, बदल करके चीफ जस्टिस को हटा दिया, और उसके अब रूल ये बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी 2:1 के रेशियो के अंदर वो कमेटी बनेगी, और जो सत्ताधारी दल चाहेगा उसको वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो ये सारी की सारी चीजें वोट चोरी, वोट डकैती के लिए ये हो रही है, और लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। कोई भी सत्ताधारी दल, उसको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, पानी देना, लोगों का काम करना उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी भी सत्ताधारी पार्टी की लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखना, लोकतंत्र को बचा करके रखना भी है। और इसके अंदर ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी तरीके से विफल हो गए हैं। और जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा, 14 तारीख की रैली की शुरुआत है, और इसके बाद में हम लोग आगे और इसको तेजी से नीचे लेवल पे लेकर के पूरे देश भर में जाएंगे। राजस्थान से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है और हमें खुशी है, अच्छी तैयारी यहाँ पे हो रही है। माकन साहब, राहुल गांधी जी ने 16 दिन की यात्रा की बिहार में इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन जनता के मन में ये असर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हमारी कोशिश जारी रहेगी। हो सकता है कि किसी को ऐसा अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि बिहार के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन कहा कि इतने वोट हुए, उससे पहले SIR के लिए उन्होंने कहा इतने टोटल कुल वोट है। तो दोनों और सभी के अंदर अनियमितताएं हैं, मिसमैच है। जैसे हरियाणा के अंदर पहले दिन उन्होंने 5 अक्टूबर को कहा 61.7% वोट है, 6 अक्टूबर को 64% हो जाते हैं, और 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होती है तो 68% हो जाते हैं। तो लोगों को हम बता रहे हैं और धीरे धीरे करके सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू, सबको धन्यवाद।